Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is April 6, 2021. Here I am, Miss Nurul Sabah. We are going to start our first unit, and the unit name is Where We Live Now. The first lesson, as we can see here, is reading emails. And so there is a format on the upper page which is showing how to write an email. This portion shows that here we will write the email ID to whom we wanted to send the email, and if we wanted to name a subject, if we wanted to tell the receiver of the email what we have sent him or her, so we will write it here as we will look on the following pages. Subject is mentioned. So in this lesson we have 4 emails from different countries and different people, and they are sent to different receivers. So here are given names from whom this email has come and to whom it is sent. So first of all, the first email we are going to look is from Sarah, and it is sent to Riba, and the subject of the email is greetings from London. So here we can see the famous building Big Ben of London. In this email, Sarah has told us about the culture and infrastructure of London city. So Big Ben is the most famous clock on the Parliament houses of capital city London, because the capital city of England is London, and London is famous for red double-decker buses where you can sit upstairs as well as downstairs, and the black taxis. She also has said us that London is a multicultural city, as 10 million people live in London, and here she has also shared with us that we can enjoy every kind of food and markets, because this is a multicultural city, and being a multicultural city, it attracts a number of visitors from all over the world, from all continents of the world. So there's a mixture of cultures, there's a mixture of foods, there's a mixture of traditions. So here we see that there are conducted concerts, there are thousands of people in the audience, and city has many theaters and cinemas. London has world famous art galleries and museums, and historical monuments such as Nelson's column in Trafalgar Square. Trafalgar Square में नेल्सन कॉलम जो है वो एक उनका हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, तो इसके बारे में बता रहे हैं. रिवर थेम्स का उसने जिक्र किया, इसमें हिस्टोरिकल ब्रिजेस हैं, और विंडिंग थ्रू दी सिटी जो कि बल खाता हुआ पूरे शहर से गुजरता है. ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो नहर के किनारे, झील के किनारे, किसी तालाब के किनारे आराम कर सकते हैं. और वेराइटी ऑफ ट्रीज़ है लंदन में, जो कि बहार के मौसम में जहाँ पे फूल खिलते हैं और उसके पत्ते जो हैं वो फिर सुनहरे और सुर हो जाते हैं ख़ज़ां के मौसम में. सो दिस वाज आवर फर्स्ट email, and now we are going to read the second email, that is from Igor, and it has been sent to Hassan, and its subject is greetings from Moscow, Russia. So now this email is from Igor and it has been sent to Hassan, एंड इट्स सब्जेक्ट इज़ ग्रीटिंग्स फ्रॉम मॉस्को, रशिया. रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को से ये जो है ईमेल भेजी गई है. इसमें हर एक कल्चर का जो है वो अपना एक अंदाज़ होता है किसी को ग्रीट करने का. तो यहाँ पे देखें हेलो था, यहाँ पे प्रिविएट एक वर्ड इस्तेमाल किया गया एक्सक्लेमेशन के साथ, जिसका मतलब ये है कि इसकी वही सीक्वेंस, इसकी जो है वही सिग्निफिकेंस है जो कि हेलो की है, या जैसे हम अपने मैसेज में, अपनी ईमेल में अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं. Here in Moscow we have beautiful ancient churches and cathedrals, as well as the famous fortress of the Kremlin. The churches have brilliant golden domes which are very bright in the winter sunshine. In Red Square we have St. Basil's Cathedral which was built in the 16th century. तो यहाँ पे मॉस्को के बारे में बता रहा है कि बेसिकली मॉस्को जो है वो एक एंशियंट सिटी वो बता रहा है, जिसमें पुराने कदीम चर्चेज़ हैं. कैथेड्रल्स भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं जो कि चर्च के साथ का हिस्सा होता है, जहाँ पे तलीम तरबियत भी की जाती है, उसे कैथेड्रल्स कहते हैं. एक किला है क्रेमलिन का, जो किला है वो बहुत मशहूर है. वहाँ का चर्चेज़ जो हैं उनके शानदार गोल्डन जो है वो डोम्स हैं ऊपर बने हुए, ये जैसे आप देख सकते हैं, तो ये गोल्डन कलर में है.
जो कि वो कह रहा है कि सर्दियों की जब सूरज चमकता है, सर्दियों की सूरज की शुआओं में जो है वो इस तरह के गोल्डन जो डोम्स हैं वो बहुत चमकते हैं। रेड स्क्वायर में, यानी कि रेड स्क्वायर चौक को कहते हैं। रेड स्क्वायर में उनका जो सेंट बेजल्स कैथेड्रल है वो 16th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, और इसके 8 जो हैं वो डोम्ड चैपल्स हैं, सम स्क्वायर, सम ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके 8 पहलू होते हैं, यानी कि खश्तनुमा, ईच विद अ मल्टी कलर्ड एक्सटीरियर, और हर एक का जो है वो अंदर से जो अंदरूनी हिस्सा बैरूनी हिस्सा है वो डिफरेंट कलर्स में रंगा हुआ है। ये आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप सेंट बेजल्स कैथेड्रल को सर्च करें अगर, तो आपको पिक्चर मिलेगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके डोम्स जो हैं वो किस तरह से स्क्वायर शेप में हैं, ऑक्टागोनल हैं, और किस तरह से वो मल्टी कलर्ड एक्सटीरियर है उसका। इट इज़ अ वंडरफुल साइट, और ये बहुत ही दिलकश मंजर होता है। वी हैव वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज वेयर यू कैन सी ब्यूटीफुल रशियन पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप्स विद देयर करेक्टरिस्टिक birch ट्रीज। यानी कि उनकी आर्ट गैलरीज का उसने जिक्र किया बाद में वगैरह। वहाँ पे यानी कि पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में भी होती हैं, लैंडस्केप में भी होती हैं, और हाउस जो है उनका वो है बिश ट्रीज जो हैं वो उनके बैकग्राउंड में ज़रूर होते हैं। उसके बाद विंटर्स में बता रहा है कि मॉस्को का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, और बहुत ज़्यादा स्नो होती है, कई महीनों तक जो है बर्फबारी होती रहती है, और मॉस्कोवा रिवर जो है वो जम जाता है। इसी तरह वो कह रहा है कि वर्स्ट टाइम उस वक्त होता है कि जब स्नो पिघलना शुरू हो जाती है और लोगों का चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और उस वक्त ऐसे जैसे कि पिघली हुई बर्फ़ जब वो गंदे भूरे रंग में बदल जाती है, तो वो साल का बदतरीन लम्हा होता है। सो हियर वी लर्न सम फैक्ट्स अबाउट लंडन, एंड इन द सेकेंड ईमेल वी हैव लर्न समथिंग मोर अबाउट मॉस्को, रशिया। द थर्ड ईमेल इज, this email has been sent to Asad and it has been sent from Jangbo and its subject is greetings from Kathmandu। खटमंडू से ये ईमेल आई है। खटमंडू जो है वो आप जैसा कि जानते हैं नेपाल का सिटी है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे फेमस वहाँ की जो है वो आप कह सकते हैं कि चीज़ है। दुनिया की हाईएस्ट पीक जो है माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो नेपाल में है जो कि पाकिस्तान के हमसाए में वाक़ है। हियर इन नेपाल वी हैव माउंट एवरेस्ट विच इन ऑल लैंग्वेज वी कॉल सगरमथा, यानी कि वो अपनी ज़ुबान में, नेपाली ज़ुबान में उसे सगरमथा कहते हैं, और उसकी जो ऊंचाई उसने बताई हुई है वो है 29,035 फीट, यानी कि 29,035 फीट की बुलंदी है इसकी, और ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है। बहुत से लोग जो है वो दुनिया भर से इसको क्लाइम करने के लिए, इस पर चढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे सैर करने के लिए, और वहाँ पे जो है वो ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। और 1953 में टेंजिंग नोर्गे जो है वो एक नेपाली शिरपा था। शिरपा ऐसे लोग हैं जो कि उस इलाके में रहते हैं, और जो माउंटेनरिंग के लिए वहाँ पे लोग आते हैं उनके साथ आगे चलते हैं। बिकेम द फर्स्ट मैन विद द न्यूजीलैंडर एडमंड हेलरी के साथ एक टेंजिंग नोर्गे जो था, जो कि नेपाली शिरपा था, और न्यूजीलैंडर जो कि एडमंड हेलरी था, उन्होंने टू रीच द रूफ ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ द माउंटेनियर्स नेम फॉर द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। यानी कि ये दोनों लोग जो हैं वो पहली दफ़ा जब दुनिया की छत पर गए, यानी कि माउंटेनियर जो हैं जो कि कोहिमा हैं, वो इसको दुनिया की छत कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, सबसे बुलंद तरीन मुकाम है। अब आगे बता रहा है कि यानी कि जब ये ईमेल भेजी गई है तो उससे पिछले साल एक मुकामी लड़की जो कि 15 साल की थी, 15 साल की एक लड़की ने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि वो सबसे यंगेस्ट जो है, सबसे कम उम्र लड़की बन गई है इसको सर करने वाली। इसके अलावा वो बता रहा है कि ये जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं, यानी कि जो बुलंदी है इतनी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा होती है हॉर्सेस के लिए और काउज़ के लिए, यानी कि काउज़ और हॉर्सेस जो हैं वो यहाँ पर नहीं जा सकते। और मोस्ट प्रीशियस एनिमल इज़ यॉर्क, तो इसलिए उनका जो सबसे कीमती जानवर है वो यॉर्क है। और स्ट्रॉन्ग हैवी लार्ज हॉर्न एनिमल, जो कि बहुत ही मजबूत, यानी कि बहुत ही ताकतवर, बहुत ही वजनी, और लार्ज हॉर्न यानी कि जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, दैट लाइक्स टू लिव एट हाइट्स अप टू 18,000 फीट, जो कि 18,000 की बुलंदी से ऊपर रहना पसंद करता है। यॉर्क जो है उसने आगे बताया कि लंबे, घने और
लंबा घना उसने कोट पहना होता है, यानी कि उसकी खाल ऐसी है, शैगी किस्म की, खुरदरी किस्म की उसकी खाल है। एंड साइज़ जो है उसका ऑक्स के जितना होता है। और ये हमें यानी कि नेपाली लोगों को खुराक फ्राहम करता है, नकलो हमल की ज़रूरियात, और उसके अलावा रहने के जो उनकी जो रहन सहन है उसमें मदद देता है, और उनके कपड़े भी उसी से बनते हैं, यानी कि उसकी खाल से। उसके बाद वो कह रहा है, कैन यू सी वाई द तिब्बतियन वर्ड फॉर यॉक इज़ नॉर, नॉर विच मीन्स वेल्थ, यानी कि वो कहते हैं तिब्बती वर्ड जो है वो नॉर हम इस्तेमाल करते हैं यॉक के लिए, जिसका मतलब कि दौलत है। तो वो कह रहा है कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्यों हम इसे नॉर कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो एक चीज़ जो कि उन्हें खुराक दे रही है, जो उन्हें रहने की जगह प्रोवाइड कर रही है, जो उन्हें ट्रांसपोर्ट फ्राहम कर रही है, जो उन्हें क्लॉथिंग दे रही है, वो उनके लिए हकीकत में वेल्थ ही है। आवर लास्ट ईमेल इज़ फ्रॉम This email is from Maria to Talha and the subject is greetings from Havana, Cuba. क्यूबा जो है वो आपको पता है कि उसका जो कैपिटल सिटी है वो हवाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, यहाँ का कैसा कल्चर है। ये साथ में पिक्चर्स जो हैं वो उसी सिटी की दिखाई गई हुई हैं। ये हवाना की एक पिक्चर है। तो यहाँ में हम लोग स्टार्ट करते हैं होला। अब यानी कि इनका जो ग्रीटिंग वर्ड है, जैसे हमारा अस्सलाम वालेकुम है, उनका ग्रीटिंग वर्ड क्या है हवाना के लोगों का होला। तो वो कह रहा है हवाना जो है वो उसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो हिस्टोरिकल जो है वो एक सिटी है। हैज़ वंडरफुल आर्किटेक्चर, इसकी जो फ़न तमीर है वो भी नहायत शानदार है, और हर जगह पे आपको मौसीकी मिलती है वहाँ पे। यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहा है रंबा म्यूज़िक एक म्यूज़िक की किस्म है, मौसीकी की किस्म है जिसे रंबा म्यूज़िक कहते हैं। वो हर वक्त गाते बजाते रहते हैं। वो कहते हैं गलियों में और रेस्तुरानों के घरों यानी रेस्तुरानों के अंदर और बाहर और बालकनीज़ में और स्क्वेयर्स में, यानी कि चौक्स में, चौकों में और दरख्तों के साए में, हर जगह पे आपको रंबा म्यूज़िक जो है, रंबा म्यूज़िक खास टाइप है म्यूज़िक की, वो आपको मिलेगी। वी लव द ड्रम्स एंड अफ्रीकन रिदम्स ऑफ और एफ्रो क्यूबन म्यूज़िक। वो कह रहे हैं हमें ड्रम्स बजाना, ढोल बजाना और जो अफ्रीकन रिदम्स हैं, हमारे एफ्रो क्यूबन जो म्यूज़िक है, हमें वो बहुत अजीज़ है और हमें इस पर फ़ख्र है, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट पॉपुलर है लैटिन अमेरिका में, यानी कि होल लैटिन अमेरिका के अंदर ये म्यूज़िक, रंबा म्यूज़िक जो है वो फेमस है। इसके अलावा वो कह रहा है कि हवाना जो है वो फेमस है अपनी ह्यूज ओल्ड 1950s अमेरिकन कार्स की वजह से, विद देयर मेटल फिन टेल्स, जिसके पीछे एक दुम सी बनी होती है मेटल की, और जो कि मछली के पर की तरह की होती है, विच वी स्टिल ड्राइव, जो कि अभी भी हम चलाते हैं। और इसके अलावा वो कह रहा है यू कैन सी दैम पेंटेड इन मैनी डिफरेंट ब्रिलियंट कलर्स, आप देख सकते हैं कि कई रंगों में से इन गाड़ियों को रंगा गया है। क्यूबा इज़ फेमस टू फॉर इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, यानी कि शुगर की पैदावार, चीनी की पैदावार, और क्यूबन सिगार जो हैं, जो कि मोटे सिगार होते हैं, उनकी वजह से भी क्यूबा फेमस है। So now we have come to an end. We have finished reading emails from 4 different countries, 4 different cities, and in these emails we have seen their culture, we have seen their historical monuments, we have been go through their culture and their infrastructure and their specialities. So now it is the end of the lecture. Hope you have enjoyed it. Allah Hafiz.